very good morning to one and all present here. I take this privilege to warmly welcome our delegates to this event on Youth and the Idea of India. I am Ayushi Barai. On behalf of IEEE UVPC Student Branch, would like to welcome our expert, Shri Vinod Kumar Mal Sir, our Principal, Dr. Kiran Amin Sir, all the head of departments, faculty members, and all the students present here. Youth is the best time. The way you utilize this period will decide the nature of the coming year that lie ahead of you. Today, we have Shri Vinod Kumar Mal Sir as an IPS officer as our expert. He is presently posted as the Director General of Police of Gujarat State. He comes from Gorakhpur, Uttar Pradesh. He did his BTech in Electronics and Communication Engineering from IIT BHU Varanasi in 1984. He joined the Indian Police Service in 1986 and was allotted to the Gujarat cadre. He has worked in various districts of Gujarat as Superintendent of Police and as Deputy Commissioner and Additional Commissioner for Police in Ahmedabad city. He is a recipient of the Indian Police Medal for marvelous service as well as the President Police Medal for distinguished service. During service, he joined a PhD in 2009 in the area of digital image processing and completed it in 2015. It is important to note that he did his PhD along with his demanding job of Indian Police Service. Presently, he is posted as DGP at Gandhinagar. He had also worked with the Government of India as a director in National Security Council, Secretariat, New Delhi. For the last 3 years, he has been associated with the Buddh Se Kabir Tak movement, which worked for diversity, pluralism, and constitutional nationalism in India. Now, I would request Shri Vinod Kumar Mal Sir to enlighten us with his thoughts and views about youth and the idea of our country. धन्यवाद आयुषी जी। मेरे बारे में काफी कुछ आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया। सबसे पहले तो मैं गणपत यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है आप लोगों से मुखातिब होकर आप लोगों से बातचीत करने का। और खास करके जहाँ तक मुझे ख्याल है कि इस ऑडियंस में आज जो सुनने वाले हैं मुझे, वो लोग ज़्यादातर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो और भी खुशी है क्योंकि मैं खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ। और इंजीनियरिंग सिर्फ एक मेरे लिए डिग्री नहीं थी, बल्कि वो एक पूरी जिंदगी के लिए एक तरीके से हमेशा साथ रहती है। हर सिचुएशन में इंजीनियर के सोचने का तरीका एक अलग होता है, आप सब समझेंगे। अभी तो मेरे ख्याल से आप लोग फर्स्ट ईयर के हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपने साल पूरे करते जाएंगे और वैसे वैसे आप वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके पूरा जो लाइफस्टाइल है, सोचने का तरीका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग खास करके, वो आपका एक सोचने का तरीका बदल जाएगा। एक इंजीनियर्स हमेशा लॉजिकल तरीके से सोचते हैं और एक एल्गोरिदम के रूप में सोचते हैं, और धीरे धीरे आप उसको सीखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्क्रीन पे 1 मिनट। Sir, there is a share button where you can share your screen. If you click on it, then there are various options will be given. So select the almost first option to share your.
Yes, Okay, sir. because I'm seeing myself very small in a corner, so I just wanted to, you know, I hope everybody is seeing me on the sufficiently big on the screen. If that is okay, there is no problem. Sir, you can change the layout from the top right window in the main area. There is a layout option Okay. where you can change the हाँ, grid and focus. okay. There is a grid stage focus. So should I go to focus, right? Full screen. Yes, sir. Full screen? No, sir. Focus, sir. Oh, sorry. Okay. Focus, then hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Uh, but then again, I am in a small window in one of the corners. So, but if I'm fine to everyone, I think it is fine to me. Yes, we can see you, sir, on big screen. In our Okay, then it is fine. I think thank you very much. I think I'm sorry I wasted a minute. सो मैं ये बात कर रहा था कि इंजीनियर्स के साथ बातचीत करने का एक अपना ही फायदा होता है क्योंकि वी आर एश्योर्ड दैट द ऑडियंस इज लॉजिकल, वो लोग तर्क की बातें समझते हैं। और एक और भी बात रही है कि मेहसाना से मेरा बहुत ताल्लुक रहा है। आपकी यूनिवर्सिटी मेहसाना में है। मैं 1996 से लेकर 98 तक करीब 3.25 साल वहां पर एसपी रहा। और आपको ये भी बताना चाहूंगी, जब मैं मेहसाना से मीटिंग वगैरह के लिए गांधीनगर जाता था तो उस रास्ते से मैं गुजरता था जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है। मेरे ख्याल से ये जो खेरवा की जगह है वहां से आपकी यूनिवर्सिटी है। और तभी वो यूनिवर्सिटी नई नई बनी थी। मैं 97 98 की बात कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से उस इलाके में पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, अगर मैं सही याद रखे हूँ तो। जैसा कि मेरे परिचय में बताया गया, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, गोरखपुर का। और बेसिकली मैं मूलतः एक किसान परिवार से आता हूँ। हालांकि मेरे पिताजी इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, लेकिन हम लोग रहे गांव में ही। और मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मेरी तरह से गांव से आते होंगे और गांव के स्कूलों से पढ़े होंगे। गांव के स्कूल के लोगों का एक अलग ही अपना कह लें कि एक अलग ही सेटिंग होती है, अलग एक मेंटल मेकअप होता है और अपनी समस्याएं होती हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मुझे लगता है आप लोग फर्स्ट ईयर के लोग हैं तो उस प्रोसेस से गुजर रहे होंगे, लेकिन ये प्रोसेस हमेशा एक लर्निंग का प्रोसेस होना चाहिए। और पहली समस्या तो होती है, अंग्रेजी की समस्या होती है। तो अंग्रेजी, खास करके जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे हमारे जैसे लोग जो कि वर्नाक्युलर्स में पढ़े हैं, जैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो शुरू शुरू में थोड़ी सी समस्या होती है, 2 4 6 महीने समस्या होती है। थोड़ा सा पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, क्लासेस में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तो उस एक प्रोसेस से गुजरना होता है। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग नई नई चीजें सीखिए। मैंने 1979 में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करके बीटेक ज्वाइन किया था। 5 साल का कोर्स उस समय हुआ करता था और 2 साल बेसिक कोर्सेज होते थे और 3 साल इंजीनियरिंग का कोर्स होता था। और जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हर एक आदमी के अपने आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, एस्पिरेशंस होते हैं। मेरी भी थी, मुझे भी ये था कि, और उस जमाने में इंजीनियर बनना बड़ी बात हुआ करती थी। इंजीनियर बहुत कम हुआ करते थे। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो सिर्फ आईआईटी कानपुर हुआ करता था, बनारस में इंजीनियरिंग कॉलेज था, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो एनआईटी इलाहाबाद में था, केएनआईटी उस दरमियान में आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पंतनगर यूनिवर्सिटी, ऐसे करके 6 7 इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। और माना जाता था कि बड़े काबिल लोग इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं। और आईआईटी में भी, जेई में भी, आप लोगों ने जेई दिया होगा, जेई में भी उस समय सिर्फ 2000 का सिलेक्शन होता था। 5 आईआईटी थे और हमारा कॉलेज था 6 इंस्टीट्यूट से जिनका एडमिशन हुआ करता था।
और उस समय मेरा कॉलेज IIT BHU बोला जाता था क्योंकि BHU का हिस्सा था, ऑटोनमस नहीं था। तो इस तरीके से था। तो हर एक के अपने एस्पिरेशंस होते हैं। आप पढ़ लिख के आते हैं, कंपटीशन देते हैं, आपका एडमिशन हुआ, आपके भी एस्पिरेशंस होंगे। मैं BHU में 5 साल रहा और मैं भी बड़ी-बड़ी चीज़ें सोचता था और ज़िंदगी को सर्च करने की, एक्सप्लोर करने की, क्या ज़िंदगी में है, क्या हो सकता है, भविष्य की उम्मीदें लिए हुए सोचता रहता था। तो हर फील्ड में एक्सप्लोरेशन, वो जो ढूँढने का काम है, सर्च का काम है, हर एक फील्ड में चलता था। साइंस, टेक्नोलॉजी में आप नई चीज़ें सोचते हैं कि क्या नई चीज़ें कर लें। और 12th तक तो आप पढ़ते हैं तो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री की किताबें होती हैं, मैथ्स की किताबें होती हैं, लेकिन जब इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफ़ी स्कोप मिलता है। यू आर ऑलमोस्ट फ्री, लैब्स होते हैं, आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। और अब तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एल्गोरिदम्स बना के कर सकते हैं। मैंने जैसे इमेज प्रोसेसिंग में PhD किया हुआ है, तो कुछ सारा का सारा आपको कहीं ना तो इमेज की ज़रूरत है, ना कैमरा की ज़रूरत है, सब कुछ आपके कंप्यूटर से ही हो जाता है। तो बहुत सारे प्रयोग जो है आप कंप्यूटर से ही कर सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाई-लिखाई और साइंस टेक्नोलॉजी तक मेरी नहीं सीमित रही। मैं उस समय और भी कह लें कि और ढूँढ रहा था और शोध कर रहा था। ज़िंदगी के मायने आदमी ढूँढता है, 18-19 साल का होता है, तो बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं कि ज़िंदगी क्या है, सोसाइटी क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या राजनीति है, क्या धर्म है, क्या जाति है, रिलेशनशिप्स क्या हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके समाज में आती हैं। अब उसको जो है सामने आती हैं और आप उसको अपने तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं भी फिलॉसफी पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा, साइंस पढ़ा, सोसाइटी को समझने की कोशिश किया। मैं बनारस में था तो बनारस शायद आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया होगा कि वो एक ऐसा शहर था जिस बहुत ही कहते हैं कि द ओल्डेस्ट सिटी ऑन दिस अर्थ, और माइथोलॉजिकली ये कहते हैं कि वो तीनों लोकों में जो आकाश लोक, मर्त्य लोक और पाताल लोक है, उस पे नहीं है, बल्कि भगवान शंकर के त्रिशूल पे है। दैट्स माइथोलॉजी, दैट्स नॉट साइंस। तो इट हैज़ इट्स ओन चार्म, इट्स ओन हिस्ट्री, कल्चर। तो उस शहर का बुद्ध से, जैन से, कबीर से, लिटरेचर में देखें तो हिंदी लिटरेचर के प्रेमचंद, जैसे संगीत का देखें तो बहुत बड़े-बड़े कलाकार वहाँ से हुए, रविशंकर हुए हैं, किशन महाराज हुए हैं, उदय महाराज हुए हैं। बहुत सारे लोग वहाँ उस शहर से हुए हैं। तो देयर वाज़ लॉट टू बी एक्सप्लोर्ड और उसमें अपनी जगह आपको ढूँढनी थी, सीखना था। तो वो मैं करता रहा। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा आज का विषय है यूथ एंड आइडिया ऑफ इंडिया। तो आइडिया, यूथ क्या है और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, यूथ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यूथ जो होता है बाय वेरी नेचर, बाय वर्च्यू ऑफ एज, 18 साल का, 20 साल का कोई बच्चा होता है, तो वो उसके सब दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं और सवाल बहुत ज़रूरी है। और जितने ही आपके दिमाग में सवाल होंगे और जितने ही सवालों का आप जवाब ढूँढने की कोशिश कीजिएगा, उतना ही आपका समृद्ध होने का, पर्सनल जो कहते हैं व्यक्तिगत रूप से एनरिचमेंट, वो आपका बढ़ता जाएगा, अनुभव आपके बढ़ते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। तो वो क्यूरोसिटी और सवाल पूछने की इच्छा जो है, वो बहुत ही आवश्यक है। और हमारी भारतीय परंपरा में सवाल पूछना एक तरीके से बहुत पुराना एक ट्रेडिशन रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे और सवाल जरूर पूछेंगे। कहीं पे कोई सवाल है कि आखिर हम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि ऐसा करो, कोई कह रहा है वैसा करो, तो हम सवाल जरूर पूछेंगे। तो वो एक एक्सप्लोरेशन का रास्ता होगा। तो एक्सप्लोरेशन के रास्ते से आप तराश करके निकलेंगे, रिफाइंड होकर निकलेंगे। जैसे मेटलर्जी में आपने पढ़ा होगा ना कि वो रिफाइन होने का मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, तो उसमें आप रिफाइन होकर के जो है, जैसे हीरा तराश से निकलता है, तो अगले 4-5-6 सालों में आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो एक तराश करके निकलेंगे। और ऐसे यूथ की जरूरत है जो कि एक साइंटिफिक टेम्पर हो, जिसके पास, जो कि एक परस्यूट ऑफ नॉलेज उसके जिंदगी में हो और वो तर्क के आधार पर चीजों को स्वीकार करता हो। ऐसा समाज और ऐसा युवा हमें नहीं चाहिए जो कि आंख बंद करके चीजें स्वीकार कर लेता है। कई जगहों पे, जैसे कई बार आप देखेंगे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धर्म के नाम पे लोग आंख बंद करके चीजें स्वीकार कर लेते हैं और अ, फिर वो गलत रास्ते पे धर्मांधता आ जाती है, फिर कर्म कांड आने लगते हैं, वो सब चीजें एक गलत दिशा में आपको ले जाती है।
तो मैंने 1984 में अपना बीटेक पूरा किया और फिर एमटेक ज्वाइन किया। हालांकि एमटेक मैंने पूरा नहीं किया, 2 सेमेस्टर पूरा किया था और सिविल सर्विसेज का इम्तिहान मैं दे रहा था, सिविल सर्विसेज इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह का इम्तिहान दे रहा था। तो इन परीक्षाओं में मैं पास हो गया और 1986 में जैसे बताया गया मैंने 1986 में अपना इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन किया और गुजरात के थोड़ा सा हम मेहसाना की बात करें। आज हम जब हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया की बात करें, तो आइडिया ऑफ इंडिया है क्या, इंडिया है क्या चीज, वो समझने की जरूरत है। क्योंकि वो हम नहीं समझेंगे तो गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि हमारा फ्रेमवर्क सही होना चाहिए। क्योंकि पूछा जाए, अगर हमसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान क्या है, तो बहुत अलग अलग जवाब होंगे। कोई कहेगा कि देखिए उत्तर में कश्मीर है, दक्षिण में कन्याकुमारी है, पूरब में नागालैंड मणिपुर है, पश्चिम में गुजरात है, इस तरीके से। कुछ लोग कहेंगे देखिए ये एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ही धार्मिक लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, यहाँ की संस्कृति बहुत विकसित है। कुछ लोग कहेंगे ये अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, अभी इतना ज्यादा विकसित नहीं है जितना पश्चिमी देश है, अमेरिका जितना विकसित है या यूरोप जितना विकसित है। तो अलग अलग इसके इंटरप्रिटेशंस इंडिया के हो सकते हैं और जितने भी इंटरप्रिटेशंस हैं सब किसी न किसी तरीके से सही हैं। तो वहां पे आएगा कि हम देश के लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं, तो देश को समझने की जरूरत है। तो हम पहले शुरू करें मेहसाना से। मेहसाना को अगर डिस्क्राइब करना हो, मेहसाना का वर्णन करना हो, आप में कई लोग मेहसाना के होंगे, तो किस तरीके से वर्णन करेंगे? मैं मेहसाना रहा हूं, मेहसाना को देखा हुआ है। तो मेहसाना का जो पहला, जो मेहसाना के बारे में हम जानते हैं कि वो बहुत ही विकसित जिला है। एक दूसरा, वहां के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। ये भी माना जाता है कि गुजरात में सबसे ज्यादा गणित या मैथमेटिक्स मेहसाना के लोगों को आती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो औद्योगिकरण की दृष्टि से भी पहले कलोल आपके मेहसाना में होगा, तो कलोल कड़ी वाला इलाका था, इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुआ करता था। 3 4 वहां पे धार्मिक स्थल बहुत है। वहां आप देखेंगे कि सिमंदर मंदिर है मेहसाना में, महुड़ी में मंदिर है, जैन मंदिर है। सिमंदर मंदिर मेहसाना में हुआ। फिर एक सूर्य मंदिर है मोढेरा में, जो कि 11वीं शताब्दी में बना था, चालुक्य राजाओं ने बनाया था। इसी तरह से तारंगा करके एक जगह है, वहां पे भी एक जैन मंदिर है, वो 12वीं शताब्दी में बना था। उनावा में मीरा दातार का दरगाह है और वहां पे पूरे गुजरात से हम कह लें और भी राज्यों से लोग आते हैं और उसकी अपनी मान्यता है कि वहां पे जो लोग काली विद्या से या ब्लैक मैजिक से असरग्रस्त होते हैं तो उनको वहां पे आने से ठीक हो जाता है। मान्यता की बात, सही है गलत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, निश्चित रूप से उसमें कोई साइंटिफिक तर्क नहीं है। लेकिन जब धर्म की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर जगह पे साइंटिफिक रीजन ही होगा और रैशनैलिटी होगी, तर्क पे आधारित होगा। धर्म बाय इट्स वेरी कैरेक्टर, ये जो है कभी कभी वो तर्क से दूर जाने लगता है, क्योंकि वहां पे रिचुअल्स होते हैं, कुछ चीजें पालन करनी पड़ती हैं, आंख बंद करके पूजा करनी पड़ती है, तो वो सब सारी चीजें आती हैं। तो धर्म में लोगों की श्रद्धा है, जो लोग धर्म को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन धर्म के नाम पे बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो शायद एक तर्कपूर्ण समाज में वो एक शोषण का माध्यम बन जाती हैं। आप सब जानते हैं कि कई जगहों पे कर्मकांड इतने ज्यादा हो जाते हैं, एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि जो कि बेसिकली एक्सप्लॉयटेटिव या शोषण पे आधारित होती है। और खासकर में इसमें शोषण होता है, गरीब लोगों का शोषण होता है, नीची जातियों का लोगों का शोषण होता है, महिलाओं का शोषण। तो यह एक व्यवस्था बन जाती है। लेकिन धर्म की अच्छी चीजें भी होती है, धर्म बहुत सारी अच्छी चीजें भी सिखाता है। धर्म आपको कहता है, कोई भी धर्म एक्चुअली देखिए, तो मैं थोड़ी सी बात आगे करूंगा कि आप इलाके में जैसे जैन धर्म के लिए हमने नाम लिए कि 3 मंदिर है, सिमंदर मंदिर है, तारंगा और महुड़ी, 3 बड़े मंदिर हैं जैन धर्म के। शायद आपको पता नहीं होगा कि जैन धर्म जो है नास्तिक धर्म है, वो ईश्वर में नहीं मानता है, वो ईश्वर में नहीं मानता है। और लेकिन उनका जो दर्शन है, जो फिलोसफी है, बहुत ही वो तर्क पे आधारित है और किसी को भी सोचने के लिए बहुत जगह देती है। उसके अगर हम मुख्य सिद्धांत देखें, जो इसमें आप में जैन लोग होंगे वो शायद जानते हैं, और जरूरी नहीं कि जानते भी हों, क्योंकि हाल की तारीख में हो गया है कि धर्म पालन करने वाले भी लोग अपने धर्म को नहीं जानते हैं।
उस धर्म को पालन करने वाले भी अपने दर्शन को नहीं जानते। तो जैन दर्शन में जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है एक अनेकांतवाद है और एक स्यादवाद है, जो कि बहुत सारी चीजें हैं उसमें। वो जीवन और मरण के चक्र से मुक्त होने का रास्ता है जिसमें आप कैवल्य को प्राप्त होते हैं, वो एक अलग बात, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं इतना कहूंगा, दो ये सिद्धांत है अनेकांतवाद, वो कहता है कि सच एक नहीं होता है, सत्य कई होते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक ही चीज के कई वर्जन्स हो सकते हैं। एक चीज कह करके हम सोचे कि पूरा हो गया किसी चीज के बारे में बात करना, तो वो आप गलती करते हैं। और दूसरा होता है सिद्धांत स्यादवाद, जो कि कहता है कि ट्रूथ इज रिलेटिव, सत्य जो है सापेक्ष है। हमारा सत्य अलग हो सकता है, आपका सत्य अलग हो दूसरा हो सकता है। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, शायद थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा कहीं पे। तो उसमें ये होता है कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है कि जो जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, वो कोई भी इवेंट ऑब्जर्व करते हैं, वो ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसे आप ट्रेन में चल रहे होते हैं तो बाहर का जो पेड़ होता है खड़ा हुआ धरती, तो पीछे जाता हुआ दिखता है। या अगर आप आपकी तरफ आती हुई ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा दिखती है, क्योंकि आप जानते हैं डॉपलर इफेक्ट वगैरह आप पढ़े हुए हैं, तो आप जानते हैं कि किस तरह से रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है या कम हो जाती है डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ योर मोशन विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो उसी तरीके से जैन दर्शन में भी रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ की बात की गई है। इसका मतलब क्या हो कि आपकी जो मान्यताएं हैं, जिंदगी जीने की जो मान्यताएं हैं, जिंदगी जीने का जो तरीका है, वो कोई एब्सोल्यूट तरीका नहीं है, एक ही तरीका नहीं। कोई कहे कि ऐसे ही रहोगे, सुबह उठ के पूजा करोगे तो ही पूजा होगी, या आराधना करोगे तो ही पूजा होगी। आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तान में दो प्रकार की भक्ति रही है, निगुण भक्ति भी रही है और सगुण भक्ति भी रही। तो आप अगर मंदिर में जाकर के पूजा करना चाहें तो वो सगुण भक्ति हो गई, रामायण पढ़ना चाहे रामचरितमानस तो सगुण भक्ति हो गई, गीता पढ़ना चाहे तो वो सगुण भक्ति हो गई। लेकिन ऐसी भी भक्ति रही है जो निराकार ब्रह्म की, निराकार ईश्वर की उपासना करती है। तो उसमें कई लोग रहे हैं यहाँ पे, जैसे कबीर रहे हैं, शंकराचार्य रहे हैं, वो लोग निराकार ईश्वर की बात करते थे। तो समाज को और देश को समझने के लिए आपके पास एक एनालिटिकल माइंड होना चाहिए सोसाइटी को समझने के लिए, अन्यथा आप गलतियां करेंगे और दूसरे लोग जो कहेंगे उसको मान लेंगे। जैसे आप अचानक कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि जो इस्लाम के मानने वाले कहते हैं इस्लाम खतरे में है, या बहुत सारे हिंदू धर्म के मानने वाले हैं कहते हैं हिंदू खतरे में। हिंदुस्तान का जहां तक सवाल है, कुछ खतरे में नहीं है। अगर खतरे में चीजें होती तो हजारों साल से ऐसे चलता नहीं रहता, इतने विकसित हम नहीं होते। तो मेरा क्या कहने का मतलब, आपकी मान्यता कुछ भी हो सकती है, लेकिन एनालिटिकल माइंड करिए, रखिए और तर्क से जो है उसको आप आगे बढ़िए। तो किस तरह का समाज चाहते हैं आप, किस तरह का समाज के लिए विकास चाहते हैं आप, विज्ञान पे आधारित समाज चाहते हैं या किंवदंतियों या अंधश्रद्धा पे आधारित समाज चाहते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कई लोग कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। आजकल कहते हैं ना कि अपनी संस्कृति लोग भूलते जा रहे हैं, इस तरह की बातें आप सुनते होंगे। तो यहाँ ये भी सोचना होता है कि अपनी संस्कृति है क्या? क्या हम जो जिंदगी आज जी रहे हैं वो अपनी संस्कृति नहीं है? कई बार जब ये लोग कहते हैं कि अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए, तो उनका मतलब होता है कि 5000 साल पहले जब हम लोग गुरुकुल में जाते थे या वेद पढ़ते थे या ये करते थे वो करते थे, तो वो हमारी संस्कृति है। निश्चित रूप से वो हमारी संस्कृति, वो हमारे इतिहास का हिस्सा है, वो हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन हमारी संस्कृति जो है वो कोई स्थिर संस्कृति या स्टैटिक संस्कृति नहीं रही, वो संस्कृति समय के साथ साथ बदलती रही, और हिंदुस्तान की संस्कृति की यही सबसे बड़ी खासियत है। तो जब मैं आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि इंडिया कोई स्टैटिक एंटिटी नहीं है, स्थिर नहीं है कि हिंदुस्तान ये है और यही रहेगा। हिंदुस्तान बदलता रहा है। हिंदुस्तान आज से 4000 साल पहले, 3000 साल पहले वैदिक काल में था। 2500 साल पहले बहुत मजबूत धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है, नास्तिकता भी आती है चारवाक दर्शन के रूप में। और इन दोनों का इतना ज्यादा प्रभाव रहा है कि मैं महसाना की बात करूं तो महसाना के सबसे बड़े जो 3 मंदिर हैं वो जैन धर्म के मंदिर हैं, और वो नास्तिक है। एक समझिए कि वो हिंदू परंपरा में से ही निकला हुआ है, लेकिन नास्तिकता की वो ईश्वर में यकीन नहीं करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, वो अहिंसा और प्रेम की, अहिंसा और शांति की बात करता है। उस समय जब जैन धर्म आया था तो समाज में बहुत हिंसा थी, लोग लड़ रहे थे, कट रहे थे सत्ता के लिए, सब कुछ हो रहा था, खून खराबा हो रहा था। बौद्ध धर्म भी उसी समय आया था।
और बौद्ध धर्म ही आप जानते हैं तो बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है कि लड़ाई झगड़ा मत करो भाई, कोई झगड़ा हुआ, बातचीत हुई तो विरोधाभास हुआ, कोई मत मतांतर हुआ तो आप बातचीत करके हल करो। तो ये, लेकिन ये चीज बदलती रही है आगे, जैसे जैसे आप जाएंगे तो बुद्धिज्म का भी रूप बदलता है, बुद्धिज्म में भी अनेक अनेक विधाएं निकलती हैं, जैन में भी अनेक विधाएं निकलती हैं, हिंदू धर्म का स्वरूप बदलता है। हिंदू धर्म पहले एक बहुदेववादी था, बहुदेववादी देश था जहां पे लोग सैकड़ों हजारों करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते थे। आपके मैसाना जिले में एक बेचराजी करके एक जगह है, वहां पे एक मंदिर है, बेचराजी माता का मंदिर। आप थोड़ी देर पहले मैंने बात की मोढेरा का मंदिर, वहां पे सूर्य की पूजा होती है, सूर्य मंदिर। तो हिंदुस्तान में प्रकृति की पूजा भी, नदियों की पूजा होती थी, सूर्य की पूजा होती थी, अग्नि की पूजा होती थी, इन सब चीजों की भी पूजा होती थी। लेकिन जब शंकराचार्य आते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, वो सबके अलग अलग रूप हैं, माया है, अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आप लोगों के लिए वो बोरिंग हुआ, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये सब बदलता रहा समय के साथ साथ, और हम अलग अलग विधाओं से, अलग अलग जो प्रवाह रहे, अलग अलग धाराएं रही, उनसे हम सीखते रहे। इस्लाम भी आया, क्रिश्चियनिटी भी आया, और हम इन सब चीजों से, पारसी धर्म भी आया, इन सब चीजों से हम लोग सीखते रहे। और 1947 में हम जब आजाद हुए तो हम एक ऐसे संविधान की परिकल्पना करते हैं जो संविधान जो है इन सारे धर्मों को लेकर के साथ चलता है, और वहां पे सर्वधर्म समभाव की एक बात की गई है। अगर मैं हिंदुस्तान का संविधान पढ़ूं, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने जो आपकी किताबें पढ़ी हुई तो किताब के आखिरी या पहले पन्ने पे सब संविधान का, या वंधारण जिसको गुजराती में बोलते हैं, उसका प्रियम्बल लिखा। वो प्रियम्बल कहता है, और प्रियम्बल हम खुद लोगों ने, जनता ने ही वो प्रियम्बल बना करके वो संविधान अपने आप को दिया है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मैं रीड कर लेता हूँ। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, किसी राजा का नहीं है, प्रजा का है, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे किसी धर्म, सब धर्म बराबर हैं, वही सर्वधर्म समभाव की बात मैं करता हूँ। और यहाँ पे न्याय की बात होती है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है, जिसमें सबको बराबर का, हर प्रकार से हर तरह का हक होगा। स्वतंत्रता की बात है, जिसमें विचारों की स्वतंत्रता होगी, धर्म की स्वतंत्रता होगी और बातचीत करने की स्वतंत्रता होगी। तथा समानता की बात करता है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, एंड फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। In our Constituent Assembly this 26th day of November 99 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. और ये जो संविधान है जो मैंने अभी पढ़ा, यही हमारे भारतवर्ष की नींव है, यही आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता है, सब धर्म बराबर, हर एक व्यक्ति, गरीब अमीर, जात पात, भाषा, धर्म, एथनिसिटी, सब लोग बराबर है। ये आइडिया ऑफ इंडिया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, ये हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है। तो जब हम आज युवा को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम किस देश की बात कर रहे हैं, तो ये सिद्धांत भी है हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और ये जो सिद्धांत है, मैं आपको बताऊं, ये सिद्धांत, जैसे मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दिया, ऐसा नहीं हुआ कि संविधान जब बनाया गया तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई, डॉक्टर अंबेडकर आए, नेहरू आए और बहुत सारे और भी विद्वान लोग आए, और ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कहीं इधर से लिया, कहीं उधर से लिया, जैसे आप लोगों को असाइनमेंट करना होता, कहीं इधर से लिया, उधर से लिया, इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया, कुछ करके उसको असाइनमेंट पूरा कर, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। उस समय जो इस चीज को बनाने वाले थे, उनमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं लोगों का रहा, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, बहुत सारे लोग और दूसरे भी थे। तो ये लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को समझा था, पूरे हिंदुस्तान को समझा था, और इसलिए ये संविधान दिया, क्योंकि ये संविधान हमारे इतिहास का एक तरीके से निचोड़ है। और हम अगर इन मूल्यों को छोड़ेंगे तो हम हिंदुस्तान नहीं रह जाएंगे, हम कुछ और हो जाएंगे। अगर हम धर्मनिरपेक्षता छोड़ देते हैं तो हम हिंदुस्तान नहीं रह जाएंगे। आप देखिए, जिन लोगों ने, हम पड़ोस में बहुत सारे देश हैं जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता छोड़ी, वो कहाँ तबाही की तरफ चले। और आज हम हिंदुस्तान में
आप बौद्ध मंदिर में भी जाते हैं, जैन मंदिर में जाते हैं, भोपाल जाते हैं तो मस्जिद में भी जाते हैं, शिलांग जाते हैं तो आप चर्च में भी जाते हैं और कोई समस्या नहीं। आप उदवाड़ा जाते हैं वलसाड़ जिलों में तो वहाँ पे उदवाड़ा में आपका पारसी ग्यारी है, वहाँ पे भी आप अंदर तो जाना वहाँ पे नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे प्रतिबंधित है अन्य धर्मों को लोगों का, लेकिन आप जरूर देखने के लिए जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती रही। और इसमें अ, गुजरात एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य रहा है हिंदुस्तान, जिसने गांधी को, और गांधी ने दुनिया में, गांधी एक ऐसे व्यक्ति जो कि अकेले व्यक्ति दुनिया पे जितना ज्यादा प्रभाव दुनिया पे डाला है और किसी एक इंडिविजुअल ने दुनिया में इतना प्रभाव नहीं किया। हिंदुस्तान की तो मतलब बात ही मत करिए, पूरी दुनिया की मैं बात कर। और ऐसा इसलिए हुआ कि गांधी जो है वो हिंदुस्तान की आत्मा को और हिंदुस्तान के तत्व को समझते थे। और मैं बताऊं, जो आप तो सब लोग ज्यादातर गुजरात के होंगे, इस बात को अप्रिशिएट कर सकेंगे। गांधी जी काठियावाड़ में, पोरबंदर में पैदा हुए, राजकोट में पढ़ाई की। एक कह लें कि एक रूढ़िवादी, एक कंजर्वेटिव फैमिली से आते थे, एक टिपिकल गुजराती सेटिंग से आते थे, लेकिन गांधी हमेशा जो है खुला दिमाग रखते। और आप जब देखेंगे कि जब वो बाद में साबरमती आश्रम आते हैं 1915-16 के आसपास, तो आश्रम में वो कुरान, बाइबल, गीता सबका पाठ। और गांधी ये इसलिए नहीं करते कि सबको खुश करना है, वो समझते थे कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान का एक रिप्रेजेंटेशन या हिंदुस्तान का तत्व अगर आश्रम में रखना है तो सारे तत्वों को रखना पड़ेगा। आपको एक और चीज बताऊं, वो शायद आपको नहीं पता होगा, आजकल खास करके गांधी को रिडिक्यूल करना एक तरीके से फैशन हो गया कि अरे गांधी अहिंसा की बात करते या गांधी शांति की बात करते थे, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल बात थी। लेकिन मैं कुछ बातें करूंगा, चूंकि आप गुजरात के हैं और गुजरात में हैं, तो हिंदुस्तान के बनने में गुजरात का जो योगदान रहा, उसमें दो लोगों ने, सरदार पटेल और गांधी का योगदान बहुत बड़ा रहा। खास करके सरदार पटेल का तो रहा ही, लेकिन गांधी का एक अलग स्थान है और उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने एक 1891 का समय होगा, उन्होंने एक जैन साधु को अपना फ्रेंड फिलोसफर गाइड बनाया। उनका नाम था श्रीमद राजचंद्र, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और वो जैन परंपरा से सीखने की कोशिश की। और गांधी जब अहिंसा की बात करते हैं तो उनकी अहिंसा का जो प्रेरणा है वो जैन परंपरा से मिली। तो गांधी जैन परंपरा से और जैन दर्शन से भी जुड़े हुए हैं। आप लोग एक बड़ा सुंदर वलसाड़ में एक धर्मपुर करके जगह है, वहां पे बहुत सुंदर श्रीमद राजचंद्र सेंटर बना है, आप लोग कभी जाइए तो जरूर देखिए, बड़ा खूबसूरत बनाया है उन लोगों ने। और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक हम इन लोगों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ऐसे लोगों को हम हिंदुस्तान को समझ नहीं पाएंगे। तो ये तो जैन से उनका संबंध हो गया। दूसरा, अगर आप साबरमती आश्रम जाते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग गए होंगे, बहुत सारे लोग अहमदाबाद के भी होंगे, वहां पे एक कुटी है, कुटीर में जाइएगा, जहाँ गांधी की मूर्ति भी लगी हुई और एक पत्थर वहां पे लगा हुआ। और जब दांडी में जो स्मारक बना हुआ मेमोरियल है, वहां पे भी जब जाइएगा तो वहां पे जब मेमोरियल में घूमिएगा तो एक जगह पे वहां पे जापानी कलाकृति लगी हुई है, जो लोगों ने देखा भी होगा आप लोगों को, सब वहां पे भी लिखा हुआ है कि गांधी ने जो दांडी यात्रा की प्रेरणा ली थी वो भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण से ली थी। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है कि जब आप देश दुनिया राजपाट का त्याग करके, महल का त्याग करके ज्ञान की खोज में निकलते हैं, उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। और गांधी ने दांडी यात्रा जो 12 अप्रैल 1930 को निकाली थी यहाँ साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, और दांडी गए थे, उसको उन्होंने महाभिनिष्क्रमण से उसकी तुलना की और कहा कि भाई इसकी प्रेरणा मैंने भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण से ली। और आप देखते जा रहे हैं परत दर परत किस तरीके से गांधी जो है हिंदुस्तान की परंपरा से जुड़े हुए। साथ ही साथ अगर आप आगे बढ़े तो शंकर का जो अद्वैत वेदांत है, शंकराचार्य के, जो हिंदू धर्म का एक बहुत महान दार्शनिक माना जाता है, जिन्होंने मठों की स्थापना की थी, हिंदुस्तान में 4 मठों की स्थापना की थी, और आज भी बड़ी इज्जत से जो शंकराचार्य होते हैं उनको समझा जाता है, देखा जाता है। तो उसमें कहते हैं कि अगर आपको इस दुनिया के माया मोह से मुक्त होना है, लिबरेशन प्राप्त चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो ब्रह्म में आपको विलीन हो जाना पड़ेगा, क्योंकि आप माया के कारण
अज्ञान के कारण आपका दूसरा रूप है। तो जब अज्ञान आपका दूर हो जाता है तो आप परमार्थिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं और मुक्ति आपको मिल जाती है। लेकिन वो मुक्ति के लिए जो माध्यम बताया गया है वो यम का माध्यम है। यम चुनना पड़ता है, यम का रास्ता चुनना पड़ता है। यम का मतलब होता है शांति, अहिंसा और अस्तेय। मतलब यही चीज जो गांधी ने अपने जीवन में उतारी। और आप देखेंगे, आप लोगों को कई बार कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अगर आप गौर से पढ़िए तो मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को जितनी बार भी अंग्रेजों ने धमकाने की कोशिश की या कहा कि तुमको जेल में डाल देंगे, गांधी ने कभी भी नहीं कहा कि मुझसे गलती हुई। आप 1917 का चंपारण का आंदोलन ले लीजिए, आप बारदोली का आंदोलन ले लीजिए, 1924 में जब कोहट में दंगे होते हैं, पाकिस्तान में भी वो इलाका आता है और गांधी वहां जा रहे होते हैं, तो ब्रिटिश सरकार उनको रोकने की कोशिश करती है। जो सिविल नाफरमानी जो 1922 में जो गांधी जी ने शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय भी कहा गया था उनको कि आप ये मत करिए। और गांधी ने कहा था कि तुमको पकड़ना है मुझे पकड़ लो, लेकिन मैं जो करता हूं, जैसे चंपारण की बात है, चंपारण में जब गए तो वो जो किसानों से मिलने के लिए जाना चाहते हैं उनको नोटिस दी गई कि आप वहां पे मत जाइए, ये जो है ये गलत चीज है, कानून और व्यवस्था का भंग होगा। तो गांधी ने जवाब दिया था कि, जवाब पढ़ने लायक है, गांधी ने जवाब दिया था कि मैं अपने देश के लोगों से मिलने जा रहा हूँ, उनकी समस्याएं समझने को आ रहा हूँ, और आपकी नोटिस सुन करके अगर मैं यहां से चला जाता हूं तो मेरे लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं होगी, आपको जो करना है कर लीजिए। और गांधी लगातार ये बात करते रहे। ये चीज इसलिए जानने की जरूरत है आप लोगों, खास गरीब वालों को, कि आज की तारीख में गांधी के लिए कहा जाता है कि गांधी तो ऐसे ही नाटक करते थे, हिंसा का नाम है, हिंसा से कहीं नहीं होता। लेकिन एक चीज बताऊं कि दांडी यात्रा के बाद में, और कई बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर हिल गया था। जब 12 अप्रैल को साबरमती से यात्रा निकलनी थी, किसी को चिंता नहीं थी, अंग्रेज सोचते थे ऐसे ही ये फालतू बुढ़ा है, ये कुछ भी करता रहता है। इवन यहाँ हिंदुस्तानी लोग भी सोचते थे। लेकिन जब 6 अप्रैल को वहां पे दांडी में यात्रा पूरी होती है तो उस समय तक ब्रिटिश एम्पायर पूरा हिल गया था और वो लोग गांधी से बहुत डरते थे। आप पूरा उनका रिकॉर्ड पढ़ लीजिए, पूरा रिकॉर्ड, उनके पत्र व्यवहार पढ़ लीजिए अपने में ब्रिटिश सरकार के साथ। वो लोग बहुत डरते थे गांधी से। तो गांधी को आप समझिए कि वो सशक्त, और देखिए गांधी कभी हिंसा की बात नहीं करते थे। गांधी जी ने जो कहा वो सत्य अहिंसा की बात की, और वह सत्य अहिंसा हिंदुस्तान को एक महान देश के रूप में दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करता है। और इसीलिए गांधी का जो भजन साबरमती आश्रम में होता था, वो कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति भगवान। ये सिर्फ महज संजोग नहीं था, वो गांधी अपनी रूह के अंदर तक जानते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, और ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आप, ये गांधी का नहीं था। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत है, और वहां से गांधी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो एक विवेकानंद का कोट भी है। आप विवेकानंद भी अद्वैत वेदांत की परंपरा से आते थे। उनका मैं कोट आपको एक सुनाता हूं, जो उन्होंने शिकागो में 1893 में जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हुआ था उसमें उन्होंने कहा था, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, ही हु इज अ ब्राह्मण ऑफ हिंदूज, ब्रह्म ऑफ हिंदूज, जिस ब्रह्म की मैंने बात की, शंकर का अद्वैत ब्रह्म, द अहुरा मजदा ऑफ जुरास्ट्रियस, पारसी लोगों का जो अहुरा मजदा है, बुद्धा ऑफ बुद्धिस्ट, Jehovah's of the Jews, and the Father in heaven of the Christians, they are all one. That which exists is one. The saints call by various names. विवेकानंद कहते हैं कि जो दुनिया में है वो एक ही है। वही शंकराचार्य भी कहते थे और वही गांधी भी कहते हैं। लोग अलग अलग नामों से बोलते हैं, उसको पुकारते हैं, कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है। और इस्लाम में भी आप देखेंगे कि एक ईश्वर की बात होती है, और गांधी ये चीज समझते थे। गांधी ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझते थे कि ईश्वर एक ही है। और जो इसको समझ गया है, कबीर आते हैं, बहुत ही सशक्त संत के रूप में आते हैं, और वो भी कहते हैं कि ये सब हिंदू मुसलमान सब धर्म निरर्थक है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ये सब धर्मों की जरूरत नहीं है, कर्मकांड की जरूरत नहीं है।
और यहाँ पे मैं बात करूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। आप जैसे युवा लोगों की साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण। तर्क की बात करिए, ये देश इतना महान बना है 1947 में, आज से 73 साल पहले आजाद हुए थे, और आज जो देश की महानता है वो सिर्फ इसलिए है कि हम इन्हें एक डेमोक्रेसी का, एक धर्मनिरपेक्षता का और साइंस और टेक्नोलॉजी का रास्ता चुना। हमने भी 1947 के बाद मंदिरों और मस्जिदों का रास्ता चुना होता तो आज हम यहाँ नहीं पहुंचे। आप लोग जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं, आज हिंदुस्तान के शहर शहर में, गांव गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, ये नहीं होता। 1951 में आजादी के 4 साल के बाद हमने पहला आईआईटी खड़गपुर में बना दिया। 1947 में मेरे ख्याल से पीआरएल बन गया था। 1962 या 63 में, 62 में इंकोस्पार बन गया था, जो बाद में चल के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना। 5वें दशक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सब बन गई। सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दिया हुआ था। अगर हमने, धर्म बुरा नहीं है, मैं धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अति धार्मिकता, कट्टरवाद हमेशा समाज को एक गलत दिशा में ले जाता है, जो हम दुनिया में उदाहरण देखना चाहता है। दीवार हो जाए, बहुत सारे देश, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बहुत सारे देश हैं। बांग्लादेश का पिछले दिनों में विकास इसीलिए तेजी से हो रहा है, उन्होंने कट्टरता का रास्ता छोड़ा। जमात इस्लामी को उन्होंने कंट्रोल किया। वहां पे जेएमजेबी करके, जेएमजेबी करके फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको कंट्रोल किया। जब आप फंडामेंटलिज्म को कंट्रोल करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी पे, तर्क के रास्ते पे बढ़ेंगे, आप विकास करेंगे, नहीं तो आप फिर एक पिछड़े रह जाएंगे। तो मैं आज 3-4 मिनट में अपनी बात में पूरी करके प्रश्न उत्तर पे आऊंगा। एक जो आधुनिक भारत है, आप क्या बनाना चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि आपकी जात सबसे श्रेष्ठ जाति है? आप ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं या पटेल हैं, तो क्या आप सबसे श्रेष्ठ हैं? क्या आप अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, या आप पुरुष होने के नाते महिला से ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं? क्या आप अब भारत की सारी भाषाओं की इज्जत करते हैं? क्या आप सारे धर्मों को जानते हैं, सारे धर्मों के बारे में जानने की कोशिश की है? क्या आप सारे धर्मों को बराबर मानते हैं? आप इसको ढूंढिए, इसके जवाब ढूंढिए, ढूंढते जाइएगा, समझते जाइएगा। आप में एक लिबरेशन, एक ज्ञान, एक खुशी आपको मिलेगी। आप हिंदुस्तान की विविधतापूर्ण परंपरा को आप अच्छी तरीके से समझने लगिएगा। तो अगर मैं समराइज करूंगा आखिर में, तो कैसा हिंदुस्तान चाहिए, और आप युवा हैं तो किस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहेंगे, तो मैं 4-5 पॉइंट ब्रीफ में कह करके अपनी बात पूरा करूंगा। तो एक मैं कहूंगा कि एक हमारा हिंदुस्तान एक आधुनिक हिंदुस्तान होना चाहिए, और आधुनिक हिंदुस्तान का मतलब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आधारित, शिक्षण पे आधारित, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार हो, सबको सुविधाएं हो, विचार से आधुनिक हो, सब में बराबरी का सिद्धांत, तर्क पे और साइंटिफिक टेम्पर एक महत्वपूर्ण हो, और कर्मकांड, रिचुअल्स समाज में एक सीमा तक ठीक है, लोगों की अपनी अपनी श्रद्धाएं करें, लेकिन ऐसा कर्मकांड और रिचुअल्स नहीं होने चाहिए जो एक्सप्लॉयटेटिव, शोषण करता हो लोगों का। और ऐसा हिंदुस्तान जो जातिवाद और धार्मिक कट्टरतावाद से मुक्त, एक खुला हो, सबके लिए बराबरी हो, सब लोग मिलजुल के रहें, वही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेद से फ्री एक देश हो, और हिंदुस्तान के लोग इस विविधता के, अलग अलग धर्मों की, अलग अलग भाषाओं की, आप गुजरात देखिए कितना खूबसूरत है, कच्छ की अपनी भाषा है, सौराष्ट्र की अपनी भाषा है, महसाणा की अपनी भाषा है, साउथ गुजरात की, डांस की, सूरत की अपनी भाषा, अलग अलग नृत्य हैं। ये खूबसूरती हमें बचा के रखनी है। और खाली मैं एक धर्म की बात नहीं करता हूँ, एक खूबसूरती ये है कि आप जो है अलग अलग धर्मों के त्योहार भी मनाए जाते हैं, और उतनी खूबसूरती से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ पे, मैं जब गुजरात में पहली बार आया, तो क्रिश्चियनिटी, ये जो क्रिसमस है, क्रिसमस का सेलिब्रेशन देख के मुझे लगा कि इतने बड़े पैमाने पे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ी खुशी। तो ये भी हम सीखें कि किस तरीके से हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन यूनिटी, यूनिटी बेकार है अगर उसमें डाइवर्सिटी ना हो, और डाइवर्सिटी बेकार है अगर यूनिटी ना हो। आजादी की लड़ाई में हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस्तेमाल किया, सब लोग इकट्ठा हुए लड़ाई करने के लिए, भले ही अलग भाषाएं, अलग क्षेत्र, सब कुछ अलग अलग धर्म थे, सबने आजादी, साथ में आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज जब हम देश की आजादी हासिल कर ली है, एक देश है, हमें डाइवर्सिटी की इज्जत करना चाहिए, हमें तमिल का भी इज्जत करना चाहिए, हमें नागा का भी इज्जत करना चाहिए, हर प्रदेश, कश्मीरी आदमी की इज्जत करना चाहिए,
सबका इज्जत करना चाहिए, तो ही हम एक महान देश बना पाएंगे। और एक प्रजातंत्र की इज्जत होनी चाहिए। प्रजातंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हम हैं इसलिए प्रजातंत्र है, इसलिए हम हैं। प्रजातंत्र नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। अभी देखिए अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, बहुत ही महान देश है। वहां पे स्वतंत्रता की एक बहुत बड़ी परंपरा है, जिसके लिए लोगों ने सैकड़ों सालों संघर्ष किया। और अभी जब पिछले दिनों जब अभी ट्रंप हार गए, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, 6 तारीख की बात है, कि लोग कैपिटल हिल पे चल के वहां पे तोड़। लेकिन एक समझिए कि देश की महानता इस बात में होती है कि आप राजनीति से ऊपर उठ करके उसकी आप आलोचना करें। और रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने भी उस वैंडलिज्म या जो आग तोड़ फोड़ हुई उसकी आलोचना की, क्योंकि अमेरिका के लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। हमको भी समझना पड़ेगा कि अपने एक शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए डेमोक्रेसी और लिबर्टी जैसी चीजों को हम खत्म ना करें, हमारे देश की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। और अपने संविधान में जो मूल्य है वही देश का राष्ट्रवाद तय करेंगे। हमारा राष्ट्रवाद जो है हिंदू राष्ट्रवाद नहीं होगा, हमारा राष्ट्रवाद मुस्लिम राष्ट्रवाद नहीं होगा, हमारा राष्ट्रवाद हिंदी राष्ट्रवाद नहीं होगा, हमारा राष्ट्रवाद तमिल राष्ट्रवाद नहीं होगा, हमारा राष्ट्रवाद सिर्फ संवैधानिक राष्ट्रवाद। आपने शुरू में सुना होगा, मेरा परिचय दिया गया कि हम लोग बुद्ध से कबीर तक एक कार्यक्रम चलाते हैं, एक आंदोलन चलाते हैं, उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। वो संवैधानिक राष्ट्रवाद की बात करता है, विविधता, एक दूसरे की इज्जत की बात करता है, धर्म जात से ऊपर उठ करके, और हिंदुस्तान के अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं, रहन सहन की इज्जत करता है। आप लोग भी अगर बुद्ध से कबीर तक में आप लोग किसी को इंटरेस्ट हो, उसके बारे में कोई बात करनी होगी तो अलग से बात हो जाएगी। आप जरूर फेसबुक पे कभी मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला और बहुत ही मुझे खुशी हुई। और मैं खास करके फिर से मैं डॉक्टर प्रोफेसर अमीन का और प्रोफेसर रवि का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ गणपत यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और आप सबका जो ऑडियंस है, स्टूडेंट्स हैं, जो कि आप यूथ है और हिंदुस्तान को बनाने का आपके ऊपर, आप पूरे हिंदुस्तान का भविष्य आपके ऊपर है। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी बात पूरा करूंगा। और मैं चाहूंगा अगर आप में किसी को कोई प्रश्न हो, कोई ऑब्जर्वेशंस हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। धन्यवाद। सर मेरा प्रश्न तो नहीं है, बट एक कमेंट है सर मेरी ओर से कि सर अभी जी अभी मैंने कोई एक लेक्चर सुना था, बात बहुत अच्छी लगी मुझे, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स और आप आपके साथ भी, कि हमारे देश में विविधता है, अलग अलग रिचुअल्स है, तो उसमें भी लेकिन एक चीज एक समान है हर एक जगह पे, चाहे आप बंगाल देख लो, चाहे आप साउथ इंडिया देख लो। वैसे मैं साउथ इंडिया तो नहीं बोलना चाहता, साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, दैट इज द करेक्ट वर्ड दैट वी शुड यूज, करेक्ट। एंड इवन गुजरात देख लो, कश्मीर देख लो, तो तीन चीज ऐसी है जो सबको जोड़ती है। एक है संगीत, दूसरा है संस्कृत, और तीसरा है साड़ी। पहनने का मतलब पहनने का ढंग जो है और यूज जो है वो अलग अलग हो सकता है संगीत का, लेकिन तीनों चीज में समानता बहुत है, और इसी से हम लोग जाने जाते हैं सर, साड़ी, संगीत और संस्कृत। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन सा। आपने संगीत की बात की है तो मैं बताऊं कि संगीत तो ऐसी चीज है कि पूरी दुनिया में संगीत एक ही है। आप लोग तो साइंस के विद्यार्थी हैं। अ, संगीत है सिर्फ सारे गामा पा नी, 7 जो स्वर हैं वो संगीत है, और उनमें शब्द नहीं है। अगर आपको मैं बताऊं कि हिंदुस्तान की जो मूल परंपरा रही ध्रुपद गायन की, हिंदुस्तानी परंपरा में, हिंदुस्तानी क्लासिकल में, उसमें शब्द नहीं बोले जाते हैं, वो सिर्फ स्वर को गाते हैं। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, दक्षिण भारत में कर्नाटक सिस्टम है, लेकिन वहां पे भी यही 7 स्वर गाए जाते हैं, और जो 4 कोमल स्वर होते हैं, रेगा, धानी और महातीव्र, कुल 12 स्वर हुए, 7 में से कोमल और तीव्र मिला के, और इन्हीं पे पूरा संगीत आधारित है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो स्वर है, राग है, वो एक ही जैसे हैं। उदाहरण मैं दूंगा, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल में भोपाली राग है, जिसमें 5 स्वर इस्तेमाल होते हैं,
सा रे गा पा धा, सारे शुद्ध स्वर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। दक्षिण भारतीय कर्नाटिक परंपरा में वही 5 स्वर से जो राग बनता है उसको मोहनम बोलते हैं। इसी तरीके से हिंदुस्तानी परंपरा में जो राग मालकोस होता है, जिसमें स कोमल ग, म कोमल ध, कोमल नी इस्तेमाल करते हैं, ये स्वर इस्तेमाल होते हैं। यही स्वर जब कर्नाटक में इस्तेमाल होते हैं, उसी राग को हिंडोलम राग बोलते हैं। यूट्यूब पे एक गाना पड़ा हुआ है जिसमें एक ही गाने में हिंदुस्तानी भी गाते हैं और कर्नाटक भी गाते हैं, वो ट्रांजिशन चलता रहता है। हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत देश है, उसकी समय कम था इसलिए वो सब बारीक बातें नहीं हो पाई। संगीत की बात लीजिए आप, जो भूपेन हजारिका का जो एक बहुत फेमस गीत है, आपने सुना होगा, गंगा बहती है क्यों। वो गाना असमीज में है, बंगाली में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, सारी भाषाओं में है। और ऐसे भी मैंने उसके वर्जन सुने हुए हैं, जैसे एक ही गाने में सारी भाषाएं इस्तेमाल हुई। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और हिंदुस्तान के लोग इस तरह के प्रयोग करने से डरते नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान को हजारों साल से मिलजुल करके रहने की आदत है। हमने साड़ी वाली बात की, साड़ी वाली बात बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि साड़ी तो जोड़ती है, लेकिन सलवार कुर्ता भी जोड़ता है। और आज तो मैं कहूंगा कि आज तो जीन्स भी जोड़ता है। कश्मीर में भी लड़कियां जीन्स पहनती हैं और कन्याकुमारी में भी जीन्स पहनती हैं, नागालैंड में पहनती हैं और पोरबंदर में पहुंचती। हमारे हिंदुस्तान में जोड़ने का एक तरीका नहीं, हिंदुस्तान में जोड़ने के अमेरिका में एक तरीका हो सकता है, कनाडा में एक तरीका हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में एक तरीका होता है कि एक अंग्रेजी से जोड़ते हैं। हमारे यहाँ तो जोड़ने के हजार हजार तरीके। मैं बताऊं आपको, मैं गोरखपुर से आता हूँ, हमारी मातृभाषा भोजपुरी है। भोजपुरी में एक शब्द होता है जिसको अंग्रेजी में वे बोलते हैं, वेट करना। जैसे 5 ग्राम का है 10 ग्राम, उसको वे को भोजपुरी में जोखना बोलते हैं। हिंदी में जोखना शब्द नहीं है, भोजपुरी में है, और वो शब्द गुजराती में आता है। तो आप ये सोचिए कि तार कहां कहां से कैसे कैसे मिलते हैं। हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी को आप स्टडी करिए तो मतलब सच अ ब्यूटीफुल इंटेंस एक्सपीरियंस की कोई सीमा ही नहीं है। और अभी 3 दिन पहले में एक अमेरिका से बच्चा आया हुआ था जो न्यूयॉर्क में रहता है, और वो ही कह रहा था कि मैं जब हिंदुस्तान आता हूं तो मैं क्या करता हूं कि मैं किसी के घर जाता हूं तो चाय पीता हूं। मैं समझ में नहीं आया, मैंने क्या मतलब चाय पीता हूं, सबके घर जाके चाय पीना, उसका क्या मतलब। बोला कि हम अमेरिका में रहते हैं तो हमें एक ही तरह की चाय मिलती है, यहाँ पे हिंदुस्तान में हम किसी के घर जाते हैं, हर आदमी का घर की चाय अलग होती है। अब ये जो चीज है, ये पूरे हिंदुस्तान की जो कहते हैं संस्कृति है, उसका निचोड़ है। यहाँ पे आप जो खेरवा का चौराहा है जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है, 4 चाय की दुकानें होगी, चारों चाय की दुकानें अलग अलग फ्लेवर का चाय आपको देती। ये जो चीज है हिंदुस्तान की बहुत अनूठी। मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज पूरी धर्म, संस्कृति, दर्शन, जीवन शैली सब में परिलक्षित होती है। अब मैं चाहूंगा कि कोई और सवाल हो तो, कोई बच्चों के। We have still about 10 minutes to go, so we can have 2-3 questions. अगर कुछ सवाल हो तो मैं चाहूंगा कि बच्चे कुछ बात करें। Participants are requested to ask the questions to expert of today's session via the QA section. संकोच ना करें, खुल के बात करें। You can raise your hand. I will, unmute you, and you can talk with our today's guest. So, anybody has any question? मैं जब तक कोई सवाल आए और 2-4 मिनट बचे हुए तो मैं संगीत की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, और मैं आपको ले जाता हूँ सूफी संगीत की तरफ। सूफी संगीत क्या है? आजकल आप बहुत सारे गाने सुनते हैं, कई कलाकार होते हैं सूफी गाते हैं, ये एक्चुअली है क्या, ये समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान में इस्लाम जो है बहुत जल्दी आ गया था, 7वीं शताब्दी में ही। शुरू में जैसे इस्लाम का जन्म हुआ, इस्लाम हिंदुस्तान में आ गया था। इस्लाम एक
एक ईश्वरवादी धर्म है जो कि सिर्फ अल्लाह को मानता है और कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं है और अल्लाह का भी कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि इस्लाम में कोई मूर्ति नहीं होती, कोई तस्वीर नहीं होती। तो जो सच्चा, जो कहते हैं, जो सच्चे अपने आप को मुस्लिम मानते हैं, वो उसी इस्लाम के रूप का, अल्लाह के रूप की प्रार्थना करते हैं। पैगंबर हो सकते हिंदुस्तान में आता है तो हिंदुस्तान में तो मैंने जब तक नदियों की पूजा होती थी, पहाड़ों की पूजा होती थी, सूरज की पूजा होती थी, यहाँ पे कोई भी आए तो उसकी पूजा करने का कुछ कुछ तो रास्ता चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि हवा में ईश्वर रहे। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग मुसलमान बने उनको कि भाई तुम्हारा अल्लाह हो सकता है कि वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट हो, फॉर्मलेस हो, इनफाइनाइट हो, शेपलेस हो, बियॉन्ड रीजन हो, वो सब हो, लेकिन हमको तो एक ऐसा ईश्वर चाहिए जो कि हमारे साथ है। तो वहां पे जो इस तरह के सोच वाले लोग थे, उन्होंने अल्लाह की आराधना संगीत के माध्यम से शुरू। और इस्लाम में जो कट्टरवादी इस्लाम को मानने वाले थे, उनको सूफी कभी पसंद नहीं आया। उनको कहता है ये सब फालतू लोग हैं, ये लोग नाच गाना करते रहते हैं। और आज देखिए वो परंपरा चलती चलती कितनी विकसित हो, जो संगीत और उसके नृत्य के माध्यम से अल्लाह की आराधना की परंपरा, जो कि ओरिजिनल इस्लाम में नहीं है, प्योर इस्लाम में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की धरती ऐसी है कि हिंदुस्तान में कोई चीज प्योर ऐसे रह नहीं सकती। और प्योर मैं एक बहुत अच्छे सेंस में इस्तेमाल नहीं करूँ। प्योरिटी हमेशा स्टैटिक होती है, प्योरिटी हमेशा स्टैग्नेंट होती है, प्योरिटी हमेशा एक तरीके से इकट्ठे पानी की जैसे होती है, जो कि खराब हो जाती है, जो सड़ जाती है। वो आगे बढ़ता है, कबीर आते हैं। कबीर एक बहुत बड़े सूफी थे, कबीर भी सूफी थे। और कबीर क्या कहते हैं? कबीर खुल के कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। वो हिम्मत देखिए कबीर की। या कबीर कहते हैं कि अगर ये आ, वो पंडितों को कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो पत्थर का पूजा करने से तुम्हें क्या मिलता है? ये हिंदुस्तान की ताकत है कि आप जो है सवाल खड़े कर सकते हैं। और इस्लाम के सामने भी खड़े किया। और देखिए हिंदू परंपरा में भी, हिंदू परंपरा में जब शंकराचार्य आए, मैंने जिक्र किया था, जो एक ईश्वर की बात करते हैं, बाद में रामानुज आते हैं। रामानुज कहते हैं यार आप अद्वैत और ब्रह्म की बात करते हैं जो फॉर्मलेस है, लेकिन हमको तो अपना भगवान चाहिए जिसको मैं दिल से लगा करके उसको अपने साथ रखूं। मैं तस्वीर बनाऊं, मैं मूर्ति बनाऊं, मैं नृत्य करूं, मैं संगीत के माध्यम से पूजा करूं। और वहां से हिंदुस्तान में भक्ति परंपरा की शुरुआत होती है। और भक्ति परंपरा की शुरुआत देखिए, भक्ति परंपरा न होती तो हम बहुत बड़े साहित्य से वंचित रह जाते। और हिंदुस्तान के लोग धर्म को सेलिब्रेट करते हैं, धर्म को अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं। यहाँ का दर्शन पाश्चात्य दर्शन से इस मामले में अलग है कि पाश्चात्य दर्शन जो है, वेस्टर्न फिलॉसफी जो है, वो इंटेलेक्चुअल्स के लिए। हमारे यहाँ जो फिलॉसफी है या धर्म है, लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ। और हमने जोड़ा। आज की तारीख में देखिए सूफी कितना पॉपुलर है। और बड़ा अजीब लगता है जब कई लोग होते हैं, कई लोग जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार मानते हैं, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है ठेकेदार मानने वाले। तो कोई गाना गाता है तो मुसलमान गाने में वो राम शब्द का इस्तेमाल करेगा, हिंदू गाने में अल्लाह शब्द का इस्तेमाल करेगा। ये सब क्या कहते हैं? ये सब क्या हो गया इसको? ऐसा कौन सा हिंदू है जो अल्लाह अल्लाह करता रहता है? या कौन मुसलमान है जो राम राम करता रहता है? उन लोगों को हिंदुस्तान की समझ नहीं। क्योंकि हिंदुस्तान की समझ होती तो उनको ये भी समझ होती कि जो विवेकानंद का मैंने कोट किया था, कि लोग अलग नाम से बोलते हैं, ईश्वर तो एक ही है। जो उसको समझ लिया, कबीर ने समझ लिया था। कबीर का वो आबिदा परवीन का गीत है, साहब मेरा एक है, आप सुनिएगा यूट्यूब पे, बड़ा खूबसूरत गाना है। साहब मेरा ईश्वर तो एक है, और जब ईश्वर एक है तो ये धर्म जात का कोई मतलब नहीं होता। मैं यही बात आज, जो मेरी खास बात थी, कि धर्म जात से ऊपर उठिए, हिंदुस्तान को महान बनाना है। अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करिए। आप मेहसाना के हैं, मेहसाना की भाषा बोलिए, गुजराती है, गुजराती की भाषा बोलिए। आप बन्नी कच्छ के रहने वाले तो बन्नी भाषा बोलिए, सिंधी बोलिए, लेकिन वह जुड़ने में कभी भी बाधक नहीं रहा। हिंदुस्तान के लोग आज भी अहमदाबाद में 5 अलग राज्यों के लोग होंगे और कभी बातचीत में कभी किसी को समस्या नहीं होती। हम दूसरे को इशारों में समझ लेते हैं। हमने पिछले 60-70 सालों में यही सीखा है कि चाहे नागालैंड का आदमी हो, चाहे कश्मीर का आदमी हो, तमिलनाडु का आदमी हो, हमें बातचीत करने में कोई मुश्किल नहीं। बांधना है धर्म। और ये सब हिंदुस्तान की जो धर्म की परंपरा है, दर्शन की परंपरा है, वो प्रेम सिखाती है। और गांधी आपके गुजरात के, हमारे गुजरात के, उन्होंने प्रेम सिखाया, Sir, we have one बांटने की कोशिश। from Abhi Solanki, sir.
जी वेलकम। Abhi, I'm unmuting you. You can ask the question to our expert. हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, अभी आपने बताया कि भगवान के लिए ये सब मूर्ति और ये अनिवार्य नहीं है सर। इसी बात पे सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग भगवान की मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं, तो अगर सर हम जनरली कोई प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे आई थिंक स्टेयरकेस है, तो वहाँ पे अगर भगवान की चित्र बनाए होते हैं, तो सब वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे थूकना मना है। तो सर हमारे इंडिया के पीपल ऐसे क्यों है कि वहाँ पे जाके ही थूकते हैं? तो ये मोनोपोली हमको बदलनी होगी ना। और सर कबीर जी का एक दोहा भी मुझे याद आता है कि मूर्ति धरी धंधा रखा पाहन का जगदीश, मोल लिया बोले नहीं खोटा विश्वाबीस। सर इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमें अगर हम गॉड को दिल से याद करेंगे तो वो हमारे साथ ही है। हमें ऐसे कोई आडंबर की ऐसे जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल सही है। आपने जो हमारी बात थी वो मैं शुरू से वही बात कर रहा हूँ कि हम लोग तो तर्क पे आधारित समाज की बात कर रहे हो। कबीर 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 साहब ने तो बहुत ही खुल के कह दिया। कबीर साहब ने बहुत खुल के दिया, आडंबर की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर तो आप ईश्वर के रूप है। जो जो हमारी फिलॉसफी है, कबीर की फिलॉसफी है, या जो अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी है, कहती है कि आप ही ईश्वर का रूप है। आप अज्ञान से ग्रस्त है, इसलिए आप अपने आप को अलग मानते हैं। तो बिल्कुल आप सही बात है कि आडंबर हमें दूर करने चाहिए। और आप लोगों से खास करके जहां कहीं भी आडंबर हो रहा है, तो एक सवाल जरूर पूछे कि ये सब नौटंकी की क्या जरूरत। क्योंकि आडंबर जो है, देखिए, कर्मकांड से किसी को विरोध नहीं हो सकता, हर आदमी का अपनी श्रद्धा है, लेकिन वो कर्मकांड कहीं ना कहीं एक शोषण की तरफ लेके जाता है। क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है, और कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा ये होता है कि जो गरीब है, जो बेचारा है, जो बेसहारा है, उससे कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करवाया जाता है। आज की तारीख में आप देखिएगा, बहुत सारे लोग कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। वो अपने बच्चों को नहीं, अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे, विदेशों में पढ़ाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट तो बेचारे गरीबों के लिए उनको झंडा पकड़ा देंगे और लगा देंगे, सड़क पे बेचारे चलेंगे, वो धर्म और जात के नाम पे अपना लड़ते रहेंगे बेचारे। तो बिल्कुल कर्मकांड, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वो कर्मकांड निश्चित रूप से बहुत ही बेकार थी। और जैन बुद्ध हमारी जो परंपराएं नहीं, उसमें इस चीज को है, उसको नकारा गया है। कबीर तो बहुत ही अग्रेसिवली, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसीलिए आए कि उस समय कर्मकांड बढ़ गया था। कर्मकांड बढ़ गया था वैदिक ऑर्डर में, बहुत ज्यादा मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन एक ऐसा ब्राह्मणिकल ऑर्डर बन गया था जो एक्सप्लॉयटेटिव इन कैरेक्टर। और इसीलिए बौद्ध और जैन धर्म आज से 2500 साल पहले, जबकि दुनिया में कोई धर्म नहीं था, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो बहुत बाद में आए, हिंदुस्तान में बौद्ध, जैन धर्म और हिंदू धर्म, 3 धर्म, ऑलरेडी पारसी भी था। तो इतने धर्म हिंदुस्तान में पहले ही थे, और सब धर्म यही कहते थे कि ये आडंबर बेकार है, कर्मकांड बेकार है, ये गलत चीज। और कोई सवाल? Anybody else? If you have any question, then you can ask. कोई गांव के बच्चे हों जो कि गांव के रहने वाले हों, कुछ पूछना चाहते हो, जो गांव से कुछ आए भी हों? शेयर करना चाहो तो आप कर सकते हो सर, हम बहुत फ्लेक्सिबल है हमारे लिए। किसी भी प्रकार का सवाल हम लोग ले सकते हैं। किसी भी प्रकार ले सकते हैं, इस विषय से बाहर भी कुछ हो, एक आध सवाल, 1-2 मिनट फटाफट ले इनफैक्ट सकते कैन हैं। आस्क ऑल्सो कि आईपीएस की अगर किसी को तैयारी करनी है तो भी सर गाइड करेंगे। दैट नॉट एन इश्यू। यस अभी अगेन। Sir, give me the guidance about UPSC. I'll be very happy to tell you about that, but right now I'll tell you, if you are in first year, तो मैं तो कहूंगा अपन पढ़ाई अच्छे से करें। आई थिंक जो डिसिप्लिन, देखिए, आज की तारीख से आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं। आप अपनी पढ़ाई, जो भी आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें मैं कहूंगा कि अगर आपने हर सेमेस्टर में, देखिए, पॉइंट पाना सब कुछ नहीं होता, लेकिन पॉइंट पाना भी एक डिसिप्लिन जरूर दिखाता है कि जो आपसे एक्सपेक्टेड है आप उसको कर पा रहे हैं। तो अगर आप ये सोचे कि आप पहले जो चैलेंज है, उस चैलेंज को पहले आप पूरा करिए। कि आपको अगर है तो आप 9 पॉइंट, 9.5 पॉइंट, 10 पॉइंट, जो भी आपका, आपके
टारगेट्स है उसको आप पाने की कोशिश करिए। अभी बहुत जल्दी है, 2 साल जाने दीजिए, सेकेंड ईयर कम से कम कर लीजिए, उसके बाद सिविल सर्विसेज का सोचिएगा। पढ़ाई लिखाई और अपने आप को एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति के रूप में डेवलप करना अभी ज्यादा जरूरी है। अभी आप सिविल सर्विसेज के चक्कर में ना पड़े, मैं यही कहूँ। Yes, sir, but pointer is also important and skill is also must ना। मतलब समझ में नहीं आया। सर हम पॉइंटर पे तो फोकस करेंगे, पॉइंटर साथ में लाएंगे, पर अगर स्किल साथ में होगी, स्किल भी डेवलप होगी ना, उससे स्किल डेवलपमेंट का भी सोचना होगा ना। हाँ, तो स्किल तो आप पढ़ाई में स्किल डेवलप करेंगे ना। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो आप वो भी सीखेंगे ना कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट्स कैसे लगाते हैं, सीआरओ पे आप टेस्टिंग कैसे करते हैं। मैटलैब सीखेंगे, मैटलैब सीखना एक स्किल है। मैटलैब पे आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, टेस्ट करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, उसको आप स्टैटिस्टिकली टेस्ट करेंगे, वो तो भी स्किल ही है ना। तो स्किल तो आप सीख ही रहे हैं, स्किल सीख ही रहे हैं। इंटरपर्सनल आप वहां पढ़ रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अभी तक आप घर पे रहते थे, परिवार में रहते थे, आप लोगों के साथ रहेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशन, तो ये सब स्किल ही हुआ ना। तो ये फिलहाल देखिए, समय के साथ आप करिए। सिविल सर्विसेज अभी आपका प्रायोरिटी, फर्स्ट ईयर में आपका प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल साफ बताऊं। अभी आप करिएगा, यू विल मिस अप, बीटेक स्टडी, यू विल मिस अप योर सिविल, यू विल मिस अप एवरीथिंग। हर चीज का समय होता है, उसको आप 2 साल के बाद सीखिए। स्किल देयर इज प्लेंटी ऑफ लर्न एट दिस लेवल। आप उसको पढ़ाई में आप सीखिए। जैसे आपका ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखिए आप। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट, आप उसको सीखिए। या आप आगे जाइएगा, आप डिवाइसेस पढ़िएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़िएगा, बहुत सारे टूल्स मिलते हैं, मैथमेटिक्स के बहुत सारे टूल्स, ट्रांसफॉर्म पढ़िएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सारा पढ़िएगा। आप पढ़ के देखिए तो सही। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में फिल्टर्स पढ़िएगा, इलेक्ट्रिकल में आप हैं तो मशीन पढ़िएगा, डीसी एसी मशीन क्या होता है, वो सब भी तो इसके लिए, वो सब बहुत बहुत जरूरी चीज है। मैं बताऊं कि मैं पीएचडी बीटेक करने के 25 साल के बाद पीएचडी ज्वाइन किया, और मैं सिर्फ इसीलिए पीएचडी कर पाया, या मुझे कोई समस्या नहीं हुई कि मेरे जो बीटेक में मैंने जो बेसिक चीजें पढ़ी थी, वो थोड़ी सी हमने साउंड बेस अपना था, सब्जेक्ट बेसिक्स हमारे क्लियर थे, तो आगे बढ़ने में तो वो सब टूल ही आप पढ़ेंगे या आप स्किल ही सीखेंगे। Sir, there is a question from Sri Hari MS, a student of first year. I am जी। unmuting you, Sri Hari MS. You can ask your question. Hello, Sri Hari MS, you are unmuted. Please ask your question. Okay, so next is Swami Darshan. He has asked this something in the QA section. So I am unmuting you. Just verbally ask to our guest. Swami Darshan. दर्शन, आप अनम्यूट हो, आप पूछ सकते हो जो आपने लिखा था क्वेश्चन आंसर सेक्शन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। ओके, उनकी ओर से शायद कुछ नॉइज है सर, इसीलिए वो बोल नहीं रहे। सर मैं उनकी बिहाफ से पूछ लेता हूँ कि उनका ऐसा था, मतलब निचोड़ ऐसा है क्वेश्चन का कि धार्मिक होने के साथ साथ हम लोग साइंस की बात, मतलब दोनों स्टांस कैसे ले सकते हैं, हाउ टू बैलेंस। बिकॉज ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जो लोग साइंस में मानते हैं वो ईश्वर में बिलीव नहीं करते, जो आस्तिक होते हैं वो साइंस को नीचा समझते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, अब इसमें क्या है कि मैं अपनी व्यक्तिगत बात कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए धर्म जो है और धर्म की जो चीजें हैं, वो अगर आप कसौटी पे कसिएगा, तर्क की कसौटी पे कसिएगा, तो कोई धार्मिक चीज धर्म की कसौटी पे खड़ी नहीं होता। और हिंदुस्तान में जो चारवाक परंपरा रही है, जो मेंटलिस्ट फिलोसफी थी, उसने बहुत साफ कहा था कि ये सब जो ईश्वर की बातें करते हैं और मृत्यु और पुनर्जन्म की बातें करते हैं, मुक्ति की बातें करते हैं, ये सब बकवास है। चारवाक ने बहुत साफ कहा। और कोई भी तर्क साइंस का आदमी जो वाकई साइंटिफिक टेम्पर रखता है, उसको वो सब बातों को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं व्यक्तिगत रूप से नास्तिक हूं, क्योंकि मैं साइंस में मानता हूं और मैंने सारी फिलॉसफी पढ़ी है। मैं बहुत ईमानदारी से बताऊंगा, पूरी सारी 9 की 9 इंडियन फिलॉसफी को पढ़ा हुआ है, वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ा हुआ है, धर्म को पढ़ा हुआ, सबको पढ़ा हुआ है। लेकिन जब तर्क आप लगाते हैं, आप अपने जैसे होता है ना कि आप
नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें पियानोज एक्सियम होते हैं, 5 एक्सियम्स है, वो एक्सियम मान करके अब आगे बिल्डअप करते हैं। धर्म में भी आप एक्सियम्स पहले स्वीकार कर लेते हैं और फिर तर्क का बिल्डअप करते हैं। शंकराचार्य हैं, वो कहते हैं कि एक ब्रह्म है और वही एक सत्य, ये एक्सियम है उनका, उसके पीछे कोई तर्क नहीं। साइंस हमेशा तर्क की बात करता है। जैसे कि मैं वो एक उदाहरण बता दूं कि 1960 के आसपास में, जो लोग थोड़ा फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा, 1960 के आसपास में एक मॉडल आया था दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बोलते थे स्टैंडर्ड मॉडल। और जब स्टैंडर्ड मॉडल आया था, ये यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के आगे की रिसर्च थी, तो जो स्टैंडर्ड मॉडल आया था वो कहते थे कि स्टैंडर्ड मॉडल का प्रिडिक्शंस जो है वो तभी सही होना चाहिए कि एक पार्टिकल होना चाहिए, एलिमेंट्री पार्टिकल होना चाहिए जिसका मास जो है 126 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर, तभी ये स्टैंडर्ड मॉडल जो है ये सही होगा, अन्यथा ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। और वो लेकिन हर चीज जो मैथमेटिक्स थी वो कहती थी नहीं नहीं ये पार्टिकल तो होना ही चाहिए, इतना बात हो गई। लेकिन साइंटिस्ट क्या करता है, साइंटिस्ट इसको स्वीकार नहीं कर लेता, ये हाइपोथेसिस है। साइंटिस्ट उसके बाद करता है, उसके बाद क्या करता है कि अगले 50 साल तक एक्सपेरिमेंट करता है। और आपने सुना होगा कि स्विट्जरलैंड के सर्न में लेबोरेटरी बनाई गई और टनल्स बनाई गई जहां पे बहुत ही हाई पावर एक्सीलरेटर्स बनाए गए जिसमें पूरी दुनिया के साइंटिस्ट लगे। और 2012 में एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया, साबित किया गया कि वाकई एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसका मास 126 MeV बाई सी स्क्वायर होता है। उस पार्टिकल का नाम रखा गया था हिग्स बोसॉन पार्टिकल, और कहा गया था ये पार्टिकल है जिससे दुनिया, तो साइंस का रीगर अलग होता है, साइंस स्वीकार नहीं करता है। धर्म की बातें हैं, अब ये तो धर्म की बातें हैं, धर्म दुनिया में है, हर जगह है, तो लोग कुछ एग्जियम्स मान करके कुछ अपना मान्यता है मान लेते हैं कि ऐसा है वैसा है। तर्क की वहां पे साइंस और तर्क दोनों साथ नहीं चलते, मैं बहुत ईमानदारी से बता दूं, मेरा ही व्यक्ति साइंस और तर्क साथ, जो साइंस और तर्क को मिक्स करते हैं वो खेल खेल रहे हैं। साइंस और तर्क कभी साथ नहीं जा सकते हैं। और इसमें ऊंचा नीचे की बात नहीं है, जो लोग मानते हैं वो मानते हैं। साइंस की एक अपनी संस्कृति होती है, कल्चर होता है। अगर आप तर्क पे आधारित बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल साइंस है, और साइंस कभी नीचा दिखाने की कोशिश किसी को नहीं करती। एक चीज देखिए, तर्क मानने वालों को है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको नीचा नहीं दिखाता, क्योंकि जो लोग साइंटिफिक टेम्पर, साइंस और ज्ञान की बात करते हैं वो जानते हैं कि कभी भी ज्ञान पूरा नहीं होता, ज्ञान एक लंबा रास्ता है और कभी भी हम संपूर्ण ज्ञान हासिल नहीं करते। तो ज्ञानी लोग कभी भी अज्ञानी की बेइज्जत नहीं करते, अज्ञानी को बेइज्जत नहीं करते, तो पढ़े लिखे को बेइज्जत नहीं करते, क्योंकि वो हो सकता है। मुश्किल धर्म वालों से होती है, जो कि हमेशा बिना किसी कारण के साइंस को नीचा दे। आप लोग अक्सर सुनते होंगे अरे साइंस तो ये नहीं कर पाया, साइंस कहाँ ये कर पाता है, देखिए ये हो गया, साइंस क्या करता है, इस तरह की बातें। साइंस कभी क्लेम नहीं करता है कि उसे सब कुछ हासिल कर लिया। साइंस का हमारा इतिहास जो है, सिर्फ इतिहास, जब से मानव आया है तब से साइंस है, क्योंकि सोच में तर्क है। लेकिन जो मेन डिस्कवरीज आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आज से सिर्फ 125 साल, 120-25 साल पहले, लेकिन 120-25 में साइंस कहां से, और साइंस कभी भी क्लेम नहीं करता कि वो सब कुछ जानता है, आज जानता है, लेकिन साइंस ये जरूर क्लेम करता है कि हम कोशिश करते रहे। यही फर्क होता है। धर्म में वो चीज नहीं होती, धर्म में स्वीकार कर लेते हैं, कहते हैं भैया मंदिर में जाओ, फोटो रखो, 500 रुपए दे दो, पत्ती रखो, ये रखो, पंडित कहेगा ये बोलिए वो बोलिए। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मान्यता है, वो लोग मान्यता रखते हैं। मैं सिर्फ साइंस और धर्म को साथ में आप देखने की बात कर रहे हैं। मैं ये व्यक्तिगत रूप से साइंस को, हाँ जी आप प्लीज बोलो। जी सर, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे ये भाई साहब ने पूछा कि साइंस और धर्म को साथ में लेके या बैलेंसिंग करके कैसे चल सकते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि जो हमारे जो भी हमारे पूर्वज, उन्होंने जो भी हमारी मान्यता थी, हमारे जो रिचुअल्स थे, हमारी जो सामाजिक रीतियाँ थी, उसमें हर एक चीज़ में साइंस जुड़ा हुआ था। लेकिन उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो हमें समझाने के बजाय उसको धर्म के साथ जोड़ दिया है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे आपको समझा सकता हूँ कैसे। जैसे अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको या दूध पिलाना है, तो हम उसको ये नहीं बता सकते कि दूध में ये कैल्शियम होता है, ये तत्व होता है, वो होता है, फलान ढमकान। तो हम सिर्फ उसको इतना बोलते हैं कि ये दूध तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं पियोगे तो हम थोड़ा मे बी
डर दिखाते हैं या फिर थोड़ा डांट फटकार देते हैं, लेकिन उसको पिला देते हैं। अल्टीमेटली हमारा गोल ये होता है कि ये दूध से इसको थोड़ा मतलब आहार उसके पेट में जाए तो थोड़ा सशक्त बने। करेक्ट, तो हमारा रीजन ये है। जबकि हम जानते हैं कि उसी उम्र में हम लोग उसको साइंटिफिक रीजन से कन्विंस नहीं कर सकते। तो ऐसी ही चीज आप पीपल के पेड़ का एग्जांपल ले लीजिए। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये बात हमारे वेदों में और पुराणों में भी थी, लेकिन ऋषि मुनि ने ये बात को समझाने के लिए इसको धर्म के साथ जोड़ दिया। तो अब दिक्कत ये है कि अब हम लोग सारी चीज को धर्म के चश्मे से ही देखते हैं। उसका परिप्रेक्ष्य एक्चुअली साइंस है। यानी कि आज से 2000 साल पहले हमें पता था कि ये एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो इसीलिए उसकी रक्षा करने की बात कही, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो वट सावित्री का जो व्रत आता है उसमें उसकी पूजा भी होती है। स्त्री उसके वो धागा वागा लपेटती है आसपास। ये रिचुअल्स इंडिया में हर कहीं पे है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इवन आप जो रिसेंट इंसिडेंट देख लो केरला का, तो वहां पे भी जो स्वामी अयप्पा का जो मंदिर था उसमें भी बहुत इंडिया में बवाल हुआ था कि यहाँ पे स्त्रियां क्यों नहीं जा सकती, ये वो। मैं एक वीडियो सुन रहा था या देख रहा था यूट्यूब पे। उसमें साइंटिफिक मतलब वहाँ पे एविडेंस है कि खास करके जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का तमिलनाडु है, कर्नाटका है, वहां से जो भी प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो भी सारी महिलाएं आती हैं जांच करवाने के लिए, या फिर मे बी फॉर द करस्पॉन्डेंस, और मतलब जो भी सलाह लेने के लिए आती है डॉक्टर के पास से, तो वो ऐसी महिला जो जहां पे उन्होंने अयप्पा स्वामी या ऐसे कोई भी मंदिर के अंदर प्रवेश किया है, टच किया है, तो उनको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान हुए हैं। तो ये बात आप समझ लो कि कहीं ना कहीं साइंस वहीं से जुड़ा है। यानी कि हमारे सारे जो मंदिर है, जो भी हमारी ये जो पूरी मतलब पूरा मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, वो साइंस के रिलेटेड है। अब दिक्कत यहाँ पे है कि वो चीज कन्वे नहीं कर पाए शायद हमारे पूर्वज हम तक, और इसलिए हम उसको सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से देखते हैं। So I think I may have convinced your answer. मैं बात पूरी करूंगा यहाँ पे, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, आपकी दोनों बातों से मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। जो आपने बातें कही बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ, और साइंस इसको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि साइंस में रिगर होना चाहिए कि आपने मंदिर वाली बात की, छूने से ये होता है, उसकी साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, कितने केसेस हुए, डेटा कलेक्ट होनी चाहिए। उसके इस तरह से बात फैलाने से कुछ नहीं होता, नंबर एक। और दूसरा, ये मुझे समझ नहीं आता किसने कहा कि सिर्फ पीपल का पेड़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन। सारे पेड़ ही करते हैं। मेरी जो बॉटनी की थोड़ा बहुत नॉलेज है, सारे पेड़ ही कहते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये तो मुझे पीपल के बारे में कभी ये नहीं है। ये सब मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, यही सब जो चीजें हैं, यही सब चीजें हैं जो कि फैलाई जाती हैं, और हम चूंकि हम क्वेस्ट नहीं, हम उसको परस्यू नहीं करते नॉलेज को। अब माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं रैशनलिस्ट भी हूँ, और जो हिंदू गुजरात की जो विज्ञान जाथा सोसाइटी उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। इन सब विषयों को बार बार समाज में आते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मामले में चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे नीम का पेड़ हो, चाहे बबूल का पेड़ हो, कोई भी पेड़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसीलिए हम पर्यावरण के लिए इतना ज्यादा पेड़ों को हम महत्व देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, मान्यताएं होती हैं, मान्यताएं के लिए मैं बात कुछ नहीं करना चाहूंगा, और आखिरकार उसमें कुछ तथ्य होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा, तो सुप्रीम कोर्ट है नहीं कि ये सब बिना सोचे समझे जजमेंट दे देता। और हर धर्म में इस तरह की चीजें होती हैं। हर धर्म में, जैसे इस्लाम में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ट्रिपल तलाक वाला इशू था, क्या उसके ऊपर था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। ये सबरीमला का था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा नहीं, मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश होना चाहिए। ये सब एकदम वाहियात चीजें हैं। ये बिल्कुल महिलाओं के साथ में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए शोषण का एक माध्यम है। आप महिलाओं को नीचा दिखाना चाहते हैं, और ये सिर्फ कर्मकांड के कारण होता है। वो पुरुष कुछ भी करे वो पवित्र है। आप देखिएगा धार्मिक लोग क्या करते हैं। वो एक कोई सेना वाले थे, वो कहे कि औरतें बियर नहीं पी सकती, कर्नाटक की बात। अरे भाई, आदमियों के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट, आदमियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं होता? कोई नहीं कोड ऑफ कंडक्ट होता, सिर्फ महिलाओं के लिए। आदमी पुरुष है, वो कुछ भी करे वो बिल्कुल सही है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं। चरित्र की बात होगी तो महिला के चरित्र की बात होगी, मंदिर में जाने का हो तो महिला। ये सब देखिए, ये सब भेदभाव, और ये वही मैं कह रहा था, जहां पे इस तरह का कर्मकांड होगा, इस तरह की चीजें क्रिएट की जाएंगी, उसमें जो कमजोर होगा उसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और कभी आगे बात करना होगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू interact with you. It has been a great pleasure talking to all of you, and especially
Professor Ravi and Professor Amin and all the management of Ganpati University, all my dear students. I am really grateful to be with you today, and it has been a great session. Thank you very much. Ayushi. Thank you so much, sir, for your inspiring words. We are grateful for your presence, and your gentle words are a source of encouragement for all of us. On behalf of IEEE UPPC student branch, I would thank all for gracing this event. Now I'd request Professor Ravi Rawal sir to present a memento on behalf of Dr. Kiran Amin sir to our expert Shri Vinod Kumar Mal sir. Okay, so this is the memento that we are going to give our beloved guest of today's session. Now, I would like to thank our principal, Dr. Kiran Amin sir, for devoting his valuable and motivating us in organizing this event. A special thank to Mr. Mukesh Sarma sir, Training and Placement Officer, for providing necessary aid and support. I would also thank the faculty members of UPPC for providing their necessary support and time. I'm thankful to Professor Ravi Rawal sir for organizing and managing such a great talk. And lastly, I would like to thank participants and volunteers for their enormous efforts and contribution to make this event a great success. Thank you. Now I request all the participants to leave the session. And you will get your certificates within 2 days. Thank you. You may leave the session.